हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम एंगर सर बायोलॉजी। आप जानते हैं मैं आपको बॉटनी का पहला यूनिट पढ़ा रहा हूं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पोली एम्ब्रियोनी। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? पोली एम्ब्रियोनी। पोली एम्ब्रियोनी क्या है? पोली एम्ब्रियोनी। व्हाट इज पोली एम्ब्रियोनी? Polyembryony means formation of more than one embryo during the development of seed. It is referred as polyembryony. Or we can say occurrence of more than one embryo in a seed. Or we can say occurrence of more than one embryo in a seed. It is referred as polyembryony. It is referred as polyembryony. हम आपको समझाएंगे polyembryony through diagrammatically. I will make you understand this polyembryony with the help of diagram. This diagram. These are integuments. This is the ovule. The structure of ovule. Inside ovule, there is embryo sac. Outside embryo sac, there is a mass of parenchyma cells. This mass of parenchyma cells is known as nucleus. These are integuments. Okay, and this is nucleus. Okay, and here is egg. This is egg. Okay, nucleus and these are integuments. बात आई समझ? अगर ये एग अगर फर्टिलाइज हो जाए, if this egg gets fertilized, results in formation of zygote. How it gets fertilized? It gets fertilized with the help of male gamete. When male gamete fuse with this egg cell कहाँ है? एम्ब्रियो सैक में. It gets fertilized, results in formation of zygote. जो ये zygote है, it results in formation of embryo. When embryo is formed from this zygote, when embryo is formed from this zygote, यहां पर क्या बन गई? zygote. कैसे? As a result of sexual fusion. जब एक मेल गेमेट ने फ्यूज किया किसके साथ? एग के साथ. इसको हम कहते हैं सिनगेमी. एंड दिस zygote then develops into embryo. इसको हम कहते हैं zygotic embryo. पहला क्या है? zygotic embryo. What is zygotic embryo? Zygotic embryo, the embryo which is formed from zygote. The embryo which is formed from zygote is called zygotic embryo. क्या है? The embryo which is formed from zygote, it is called इसको हम कहते हैं zygotic embryo. कैसे zygotic embryo बनते हैं? It is formed as a result of sexual fusion. The embryo which is formed from zygote, it is called zygotic embryo. zygote से embryo बनता है, इसको हम कहते हैं zygotic embryo. As a result of sexual fusion, when male gamete fuses with this egg, जब इस एग के साथ मेल गेमेट फ्यूज करता है, यहां पर क्या बनता है? zygote बनती है. zygote जो है, it later develops into embryo. This embryo is called zygotic embryo. जो embryo है वो कहां से बना? zygote से. इसी को हम कहते हैं zygotic embryo. zygotic embryo कैसे बनता है ये? It is formed as a result of sexual fusion. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है
तो जाइगोट बनती है, जाइगोट बनती है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, इसको हम कहते हैं जाइगोटिक एम्ब्रियो। बात आई समझ? जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही एम्ब्रियो बन सकेंगे। क्या है? जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एम्ब्रियो बन सकेंगे, बट बिना फर्टिलाइजेशन, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एम्ब्रियोस बन सकते हैं। मैंने क्या बोला? हमने यहां देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जाइगोटिक एम्ब्रियो बन गया। बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिना फर्टिलाइजेशन भी एम्ब्रियोस बन सकते हैं। जब इस न्यूसेल से एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, इसको हम कहते हैं न्यूसेलर एम्ब्रियो। क्या है न्यूसेलर एम्ब्रियो? क्या है न्यूसेलर एम्ब्रियो? दूसरा जो है न्यूसेलर एम्ब्रियो। न्यूसेलर एम्ब्रियो, व्हाट इज न्यूसेलर एम्ब्रियो? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूसेलस। कहां से बनता है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूसेलस। न्यूसेलस से बनता है, इसको हम कहते हैं न्यूसेलर एम्ब्रियो। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल। ओके। और जो तीसरा है, इंटीगमेंट से भी एम्ब्रियो बनते हैं। इंटीगमेंट्स, इनको हम कहते हैं इंटीगमेंट्री एम्ब्रियो। इंटीगमेंट्री एम्ब्रियो, इंटीगमेंट्री एम्ब्रियो क्या है? इंटीगमेंट्री एम्ब्रियो वो एम्ब्रियोस है दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम इंटीगमेंट्स, formed from integuments, formed from integuments। अब यहां देखना है, all embryos are formed in a single cell, such when embryos are formed in a single cell, this phenomena is called polyembryony। zygotic embryo भी, nuclear embryo भी, integumentary embryo भी are formed in a single cell, this phenomena is called polyembryony। इसी को हम कहते हैं polyembryony, क्योंकि यहां क्या बना? एग से पहले बना जाइगोटिक एम्ब्रियो, न्यूसेलर से बना न्यूसेलर एम्ब्रियो, एंड इंटीगमेंट से बना इंटीगमेंट्री एम्ब्रियो। बट एक बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात यह, अगर आपसे पूछा जाए जो जाइगोटिक एम्ब्रियो और न्यूसेलर एम्ब्रियो है, क्या आपस में आइडेंटिकल है? क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? क्या इनमें फर्क है या नहीं है? आइडेंटिकल है? जवाब दो। अगर आपसे पूछा जाए कि जाइगोटिक और न्यूसेलर एम्ब्रियो आपस में आइडेंटिकल है, आपका जवाब क्या होगा? आप ये हां या नहीं? आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे नहीं। क्यों? जो जाइगोटिक एम्ब्रियो है, इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन। जाइगोटिक एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन। जब सेक्सुअल फ्यूजन से जाइगोटिक एम्ब्रियो बना, वहां क्या मिलती है? वहां वेरिएशन मिलती है। क्या मिलती है? वेरिएशन, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन। ओके। जो एम्ब्रियो बना, इसमें क्या है? वेरिएशन। वेरिएशन क्यों है? क्योंकि ये किससे बना? सेक्सुअल फ्यूजन से बना। इट इज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन। वेरिएशन एंड सेक्सुअल फ्यूजन आइडेंटिकल नहीं है। ये किससे नहीं मिलता है? न्यूसेलर एम्ब्रियो से। ओके। अब और एक बात याद रखते हैं, जो ये एम्ब्रियो है, न्यूसेलर और इंटीगमेंट्री एम्ब्रियो है, जो ये दोनों एम्ब्रियोस है, ये क्या है? फॉर्मेड थ्रू एपोमिक्सिस। ये एपोमिक्सिस पता ही आपको है क्या है? एपोमिक्सिस, व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस इज a type of asexual reproduction that mimics the sexual reproduction, जो मिमिक्री करता है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसी को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। जो यहां पर जो इंटीगमेंट्री एम्ब्रियो और न्यूसेलर एम्ब्रियो है,
ये किस प्रोसेस से बना? एज अ रिजल्ट दे आर फॉर्म्ड थ्रू एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस की प्रोसेस से बना है। एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एपोमिक्सिस जो है इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, क्या कोई वेरिएशन मिलती है किन में? इंटीग्युमेंट्री और न्यूक्लियर एम्ब्रियो में मिलती है कोई वेरिएशन? नहीं, कोई वेरिएशन नहीं मिलती है। क्यों? जो ये एपोमिक्सिस से इंटीग्युमेंट्री और न्यूक्लियर एम्ब्रियोस बने, ये क्या है? इनमें कोई वेरिएशन नहीं मिलती है। दैट इज जो ये है, ये जो एम्ब्रियोस है दे आर जेनेटिकली and morphologically similar। क्या है? they are genetically and morphologically similar। ओके, वेरिएशन नहीं मिलती है। जो एपोमिटिकस है और ऑल्सो जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होती है, इनको हम क्या कहते हैं? कोलून्स। जो एपोमिटिकस है, एपोमिटिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड कोलून्स। ये बात आपको याद रखनी है। एपोमेटिक जो है और ऑल्सो कॉल्ड कोलून्स, इनको हम कहते हैं कोलून्स। कोलून्स क्या है? कोलून्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू दैट ऑफ पैरेंट। ओके, क्या मैंने आपको बताया? पॉलीएम्ब्रियनी क्या है? एक बार फिर मैं आपके लिए रिपीट करूं। पॉलीएम्ब्रियनी क्या? occurrence of more than one embryo in a seed is referred as polyembryony। Okay, or we can say formation of more than one embryo during the development of the seed is referred as polyembryony। ये मैंने यहां पर डायग्राम बनाई किसकी? ओवल की। These are integuments of the ovule, this is the nucleus and this is the egg which is present in embryo sac। ओके, जब इस एग से किसकी फॉर्मेशन होगी? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। एग से एग जब फर्टिलाइज हो जाएगी, पहले एग फर्टिलाइज हो जाएगी किससे? मेल गेमेट से। ओके, इसके बाद यहां पर जाइगोट बनेगी। जाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो। ओके, इसको हम कहते हैं जाइगोटिक एम्ब्रियो। जाइगोटिक एम्ब्रियो जो बनता है इट इज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन। सेक्सुअल फ्यूजन की वजह से ये बनता है। कौन? जाइगोटिक एम्ब्रियो। ये बात याद रखनी है। ओके, और जो दूसरा है न्यूक्लियर एम्ब्रियो। सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से एम्ब्रियो नहीं बन सकते, बट other than sexual reproduction also embryos are formed। These embryos are nuclear embryo and integumentary embryo। okay, बात आई समझ? बिना फर्टिलाइजेशन, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एम्ब्रियोज बन सकते हैं। ओके, कौन कौन सा एम्ब्रियो? एक तो न्यूक्लियर एम्ब्रियो एंड सेकंड इज इंटीग्युमेंट्री एम्ब्रियो। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इंटीग्युमेंट्स। ओके, बट एक बात अगर आपसे पूछा जाए कि जाइगोटिक और न्यूक्लियर एम्ब्रियो आपस में आइडेंटिकल है, आपका जवाब क्या होगा? नहीं सर, आइडेंटिकल नहीं है सर। क्यों? क्योंकि जाइगोट जो है जाइगोट इज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन। ओके, सो वहां वेरिएशन मिलती है। न्यूक्लियर एम्ब्रियो इंटीग्युमेंट्री एम्ब्रियो जो है, न्यूक्लियर एम्ब्रियो और इंटीग्युमेंट्री एम्ब्रियो जो है फॉर्म थ्रू एपोमिक्सिस। ये जो है इट इज फॉर्म थ्रू एपोमिक्स। ये बात याद रखनी है। ये जो दो एम्ब्रियोस है, न्यूक्लियर एम्ब्रियो और इंटीग्युमेंट्री एम्ब्रियो, दे आर फॉर्म थ्रू एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस प्रोसेस से बनते हैं। कौन कौन? न्यूक्लियर और इंटीग्युमेंट्री। ये आपको याद रखने हैं। किससे? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस। ओके, एपोमिक्सिस प्रोसेस से ये दो न्यूक्लियर और इंटीग्युमेंट्री एम्ब्रियो बनते हैं। ओके, एपोमिक्सिस पता ही क्या है? एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म of asexual reproduction that mimics the sexual reproduction। okay, it is formed through asexual reproduction, through apomix, or we can say asexual reproduction। जो ये एम्ब्रियोस है दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। क्या है? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। वेरिएशन नहीं मिलती है, वेरिएशन इनमें नहीं मिलती है क्योंकि इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एपोमिटिकस ऑल्सो कॉल्ड कोलून्स, इनको हम कोलून्स भी कहते हैं। किनको?
एपोमेटिक्स, एपोमेटिक्स और ऑल्सो ये क्या है एपोमेटिक्स, इनको वी ऑल्सो कॉल देम एज कोलून्स। थैंक यू। ये आपका जो बायोलॉजी का पहला यूनिट है ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।